Good morning, students. Today I am going to connect the topic of previous video, the French Revolution and the idea of the nation. Children, there you have watched the answer of two important questions of first paragraph and second paragraph of page number 5. First paragraph is related to the question, what was the effect of French Revolution? There you read in first paragraph, the sovereignty was transferred from monarchy to a body of French citizens. The people had the right not to constitute nation but to shape the destiny. Thereafter, you also have discussed next paragraph, question number 2. What steps were people took to bring the sense of collective identity in France? This answer is already underlined in this paragraph. Now connecting to the same video, I would like to recall third paragraph. It is mentioned here in the textbook. The revolution further cleared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, and other words, to help other people of Europe to become nations. इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रेंच नेशन का एक अपना मिशन लक्ष्य बन गया कि अब हमें यूरोप के अदर नेशंस को आज़ाद करना है. लिबरेट मीन्स होता है टू मेक फ्रीडम, टू ब्रिंग इंडिपेंडेंसी फ्रॉम द सिंगल अथॉरिटी. डेपोटिज्म मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ सिंगल अथॉरिटी, दैट इज मोनार्की गवर्नमेंट. यानी इस पैराग्राफ में दिया है कि फ्रांस को मोनार्की गवर्नमेंट से, राजतंत्र जो एक क्रूएल गवर्नमेंट होता है, उससे आज़ाद करना है और इस आज़ादी के लिए दूसरे यूरोपियन नेशंस को सपोर्ट करना है. Last paragraph of this textbook is, when the news of the events in France reached the different cities of Europe, the students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs.
यह समाचार जब पता चला दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को, तो छात्र और जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल है वो एक क्लब, फ्रेंडली क्लब का फॉर्मेशन किया, जिसको जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता है। लेट अस नो व्हाट इज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब is a group of people that was set up by the members of students and educated middle class. It was the most famous group of people. Their activities and campaign prepared the way for the French armies. The founder of Jacobin Club was Maximilien Robespierre, and he founded this club in June 1789. What this campaign was doing? The campaign prepared the club for the French armies, moved into several European countries like Belgium, Switzerland, Italy in the 1790s. इस तरह से इस क्लब का ये एक उद्देश्य हो गया कि अब हम लोग सब लोग मिल करके डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे और ये सारे जो क्लब के मेंबर हैं वह अपना जो नेशन का आइडिया है, राष्ट्र निर्माण का आइडिया है, इंडिपेंडेंसी का आइडिया है, वो दूसरे कंट्रीज में इसको फैलाएंगे। और इनके साथ एक swathe होता है within the wide swathe of territory that came under his control, और एक पट्टी लगा करके अपने साथ जाते थे उस टेरिटोरी के तहत जो कि उनके कंट्रोल में थे। अब नेक्स्ट एक बात आती है नेपोलियन की। Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed the democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. नेपोलियन जब 1804 में शासन में आया तो उन्होंने ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम एडॉप्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, उनको तो क्रश कर दिया, उनको डिफीट कर दिया, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ रेक्टिफाई किया, सुधार किया। क्या? जो सिस्टम उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाया वह पहले की तुलना में ज़्यादा रैशनल था। रैशनल मतलब होता है जो जनता के लिए, प्रजा के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो। दिस आइडिया ऑफ नेपोलियन इज नोन एज सिविल कोड ऑफ
नेपोलियन और नेपोलियनिक कोड। अब इस कोड में क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। क्वेश्चन का मतलब है कि नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कौन सा एफिशिएंट सिस्टम को अपने क्षेत्र में जहां वो शासन करता था उसको लागू किया। इसका आंसर चिल्ड्रन पेज नंबर 6 के पैराग्राफ में दिया हुआ है और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो उसने पहला चेंज जो एफिशिएंट चेंज लाया कि नेपोलियन रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म के अधिकार पर जो प्रिविलेजेज मतलब विशेष अधिकार मिला हुआ था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद ही इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के सामने सबका वैल्यू इक्वल होगा, जो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक फीलिंग को, उनके नेपोलियन के डेमोक्रेटिक फीलिंग को यहाँ रखता है। ये मोनार्की में एक्चुअली होता नहीं है, बट इट वाज ए न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ नेपोलियन। थर्ड उन्होंने क्या सुधार लाया? ही सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। जनता को धन कमाने का, रखने का अधिकार सुरक्षित कर दिया। नेक्स्ट में उन्होंने क्या चेंजेस लाया? ही एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम मैनोरियल ड्यूज। उन्होंने ये जो सबसे बड़ा बदलाव लाया कि जमींदारों के नीचे जो सर्फ छोटे छोटे किसान होते थे उनके ऊपर फ्यूडल का, जमींदारों का काफी कर्ज हुआ करता था, कर्ज से दबे हुए थे। द फार्मर्स, द पुअर फार्मर्स वर बर्डेन्ड विद द टैक्सेस ऑफ द फ्यूडल दैट ही एबोलिस्ट। मतलब उसको इन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद इन द टाउन, शहर में क्या बदलाव लाए? तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। व्यापार के लिए जो कुछ प्रतिबंध थे उनको भी उन्होंने हटा दिया। इससे ट्रेडर्स को बेनिफिट हो गया शहर में। नेक्स्ट चेंजेस क्या लाया? उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप किया। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड एंड बिजनेसमैन, वर्कर्स enjoyed freedom in their transportation and business of goods। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट चेंजेस जो है एक मोनार्क होने के बाद भी नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अडॉप्ट किया। यह इसलिए कहा गया है कि नेपोलियन राजा तो था, बट he started to feel the genuine problem of his subjects where he was ruling in his territory। लेकिन आप when you will read paragraph number 2 page number 7, तो उसमें last paragraph it is given here कि however in the area conquered by the Napoleon, the reaction was mixed। इस फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन का इस सुधार के लिए एक मिक्स्ड रिएक्शन था। इनिशियली इन मेनी प्लेसेज सच एज हॉलैंड,
Switzerland, as well as certain cities of the Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw. The French armies were welcomed as harbingers of liberty. कहने का मतलब कि शुरुआत में इन कंट्रीज में जिनका मैंने नाम आपको डिस्कस किया, वहाँ पर लगा कि यह जो है स्वतंत्रता का मैसेंजर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के दूत के रूप में ये हमारे लिए हैं. बट द इनिशियल enthusiasm soon turned in hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom. मतलब ये कुछ ही दिन के बाद, शुरू में तो लगा बट कुछ ही दिन के बाद ये लगा कि यह धीरे धीरे एनमिटी में, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है एनमिटी, राइवलरी में कन्वर्ट हो जाएगा. और ऐसा हुआ भी. और जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था उसमें ये क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वह इस पॉलिसी के साथ नहीं चलेगा. इंक्रीज टैक्सेशन, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe. लेकिन इस फ्रेंच आर्मी को यह डिमांड जो था पूरे यूरोप को जीतने के लिए ये सारे सेंसरशिप को लगाना जरूरी था और वो लगा भी दिया. हाँ, इस तरह ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. इस तरह यह धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना जो आइडिया था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जनता की भलाई के लिए, वह धीरे धीरे एक बदलता हुआ दिख गया. Now we will discuss how the making of nationalism in Europe. यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म लाया गया है, ये it is a separate topic of discussion. I will discuss in next video. Thank you.